بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تربیت پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام تہمینہ یاسر ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میں فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز کے ذریعے ذہنی مسائل کے بارے میں اویئرنیس اور ان کے علاج کے بارے میں گائیڈنس دیتی ہوں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، اور میری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے۔ شکریہ۔ بچہ پیدائش کے وقت کچھ بیسک کوالٹیز لے کر اس دنیا میں آتا ہے اور ہم پیدائش کے پہلے دن سے اس کی پرسنالٹی کو شیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پریگننسی کے دوران بھی ہماری ایموشنز بچے کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اگر ماں خوش رہتی ہے تو بچہ بھی اندر خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر ماں اداس ہوتی ہے تو بچہ اداسی محسوس کرتا ہے۔ بچے پیدائش سے لے کر 3 سال کی عمر تک ہر چیز کو بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اس لیے ان 3 سالوں میں بچوں پر خاص طور پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے مسائل کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں: تعلیمی، جذباتی اور کرداری مسائل۔ ان سب مسائل کی بنیاد گھر سے پڑتی ہے۔ گھر کا ماحول بچے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے گھر سے ہی اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اگر گھر کا ماحول خوشگوار ہے تو بچہ بھی خوش رہنا سیکھے گا۔ اسی طرح اگر ماں باپ مسائل کو اچھے طریقے سے حل کرتے ہیں تو بچہ بھی یہی آداب سیکھے گا۔ اگر گھر میں پڑھائی کو اہم سمجھا جاتا ہے تو بچہ بھی پڑھنے کی طرف توجہ کرے گا۔ اسی طرح بچے کو زندگی کے گولز بنانے کے بارے میں اگر سمجھایا جائے تو بچہ بھی گولز بنانے کی طرف توجہ دے گا اور اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارے گا۔ بچے کو اگر ٹوکنے کے بجائے اس کے سامنے رول ماڈل بنے اور اس کو صحیح کام کر کے دکھائیں تو بچہ بھی صحیح کام کرنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں ان مسائل کے بارے میں بات کروں گی جو کہ میرے کلائنٹس نے مجھ سے پوچھے۔ سب سے زیادہ پوچھا گیا سوال جو کہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو صحیح طرح ڈیفائن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بچہ اگر صحیح طرح بات نہیں سنتا تو سب سے پہلے آپ کو ENT اسپیشلسٹ کو دکھانا ہوگا۔ اگر کانوں میں پرابلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ بچہ بات نہیں سنتا، بلکہ پرابلم یہ ہے کہ بچہ سن کر آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں بچے سے وہ نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے سب سے آسان اور پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ بچے کو کبھی بھی دور سے یا کسی دوسرے کمرے سے کوئی کام کرنے کو نہ کہیں، بلکہ اس کے پاس جا کر اس کو متوجہ کریں اور اس کے بعد کہیں کہ بیٹا یہ کام کر لو۔ اگر پھر بھی وہ یہ کام نہیں کرتا تو آپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو متوجہ کریں اور پھر سے ریمائنڈر دیں کہ بیٹا یہ کام کر لو۔ اکثر بچے اس حد تک پہنچنے پر کام کر لیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے ریوارڈ اور پنشمنٹ کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے، یعنی بچے کو اچھا کام کرنے پر ریوارڈ دیا جائے اور کوئی غلط کام کیا ہے تو اس پہ پنش کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم ریوارڈ کی بات کریں گے، یعنی جب آپ کوئی کام اس سے کرانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ریوارڈ کو اٹیچ کر دیں، یعنی بچے کو اچھے کام کے لیے انعام دیں۔ یہ انعام یا ریوارڈ اس کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، اس کو کوئی اس کی پسند کی چیز دی جا سکتی ہے یا سیر کرانے لے جایا جا سکتے ہیں۔ یہ سب آپ اپنے بچے کے حساب سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جب اسکول سے واپس آئے تو اپنی چیزیں صحیح جگہ پہ رکھے، تو آپ ریوارڈ کا طریقہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی بچہ جب صحیح جگہ پہ چیزیں رکھتا ہے تو اس کو ریوارڈ دیں۔ اگر روز ریوارڈ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چارٹ بنائیں پورے ہفتے کا اور روز کے سٹارز لگائیں، یعنی آج اچھا کام کیا تو 1 سٹار لگا دیا، کل اچھا کام کیا 1 اور سٹار لگا دیا، اور پورے ہفتے میں جتنے سٹارز ہوئے اس کے حساب سے اسے گفٹ دیں۔ جب ریوارڈ سے کام نہ چلے تو پھر ہم پنشمنٹ کی طرف آتے ہیں، لیکن پنشمنٹ بہت سوچ سمجھ کے دینی ہوتی ہے، اور ہمیشہ پنشمنٹ کو بچے کے ساتھ ڈسکس کر کے سلیکٹ کریں کہ بچے کو ہم نے کون سی پنشمنٹ دینی ہے۔ پنشمنٹ کے لیے 3 دفعہ کی وارننگ کا طریقہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی آپ نے اسے کہا کہ وہ اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ رکھے اور ریوارڈ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب آپ پنشمنٹ کی طرف اگر آتے ہیں تو آپ یوں کریں گے کہ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ اگر نہیں رکھو گے تو پھر آپ کو کھیلنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یہ وارننگ آپ نے 2 دفعہ اور دینی ہے۔ اگر 3 دفعہ کہنے پر بھی بچہ
चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रखता और खेलने लगता है तो आपने उसको खेलने से रोकना है। पनिशमेंट में आप बच्चे को खेलने से रोक सकते हैं या उसको टाइम आउट दे सकते हैं या कोई और पसंद की चीज़ जो कि वो चाहता है उससे रोक सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है टाइम आउट की, यानी जब बच्चे ने आपकी बात ना मानी तो आपने 3 दफ़ा की वार्निंग के बाद उसको उस कमरे में एक कोने में खड़ा कर दिया या फिर दूसरे कमरे में भेज दिया कि आप जब तक बात नहीं मानोगे आपको ये टाइम आउट की सज़ा मिलती रहेगी। इस सज़ा को 5 मिनट के टाइम से शुरू कर सकते हैं और अगर बच्चा फिर भी ना माने तो वक्त को बढ़ा सकते हैं। एक और सवाल जो कि मेरे क्लाइंट ने किया वो भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चीज़ें तोड़ता है और मुंह से गलत अल्फाज निकालता है। जब मैंने हिस्ट्री मालूम की तो पता चला कि उसके वालिद सख्त मिजाज हैं और वो भी गुस्से के साथ बहुत सी गलत बातें मुंह से निकाल देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने सबसे पहले वालिद की एंगर मैनेजमेंट की और उसके बाद वालिदैन को बताया कि वो बच्चे के लिए रोल मॉडल बने, यानी अगर वो चाहते हैं कि बच्चा गलत अल्फाज मुंह से ना निकाले तो बच्चे के सामने खुद भी गलत अल्फाज ना बोलें। इसी तरह अगर वो चाहते हैं कि बच्चा गुस्सा ना करे तो उसको बताएं कि गुस्सा करने के बजाय हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, यानी आप अगर गुस्सा आया है तो उस जगह से हट जाएं, आप पानी पी लें या आप और बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि मैंने अपनी एंगर मैनेजमेंट की वीडियो में बताई हैं, उन पे अमल कर सकते हैं। खुद भी अमल करें और बच्चे को भी सिखाएं ताकि बच्चा बड़े होकर एक अच्छा शहरी बन सके। एक वालदा अपनी बेटी के हवाले से बहुत परेशान थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 1 साल से उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई और स्कूल से रोज़ कंप्लेंट आ रही है कि वो अच्छा बिहेव नहीं करती या खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती। जब मालूम किया गया तो पता चला कि घर में भी वो बहुत रिजर्व रहती है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसी सूरत हाल को इजी ना लें। हो सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही हो, कोई उसे तंग कर रहा हो या कोई ऐसी परेशानी हो जो कि आपको उसने ना बताई हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चे के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखें, एक मजबूत ताल्लुक़, ऐसा ताल्लुक़ कि जिसकी वजह से बच्चा हर बात आपके साथ शेयर करे। जब बच्चा आपके साथ हर बात शेयर करेगा तो आप उसके मसाइल को बहुत इजीली समझ भी लेंगे और उनको हल करने के लिए उसकी मदद भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखें कि वो अपने हर मसले के हल के लिए आपकी तरफ रजू करें। उनको प्यार दें और एतमाद दें, उनको सही और गलत की पहचान दें। जब आप बच्चे को सही और गलत की पहचान दे देते हैं और उसके बाद उसे बताते हैं कि हमें तुम पर एतमाद है, तो बच्चा अक्सर सही करने की कोशिश करता है। बच्चों को 6-7 साल की उम्र में ही बताना शुरू कर दें कि उन्होंने अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने लोगों के साथ कितना फासला रखना है, गैर लोगों से बात करनी है कि नहीं, कोई अगर उन्हें टच करता है या कोई गलत तरीके से बिहेव करता है तो उन्होंने फ़ौरन अपने वालिदैन को बताना है। ये सब बातें बच्चों को बहुत छोटी उम्र में जब हम बताने लगते हैं तो बच्चे बहुत से मसाइल से दो चार होने से बच जाते हैं। इसी तरह बलूगत के सालों में भी बच्चों के ऊपर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि वो इस एतमाद के साथ बड़े हों कि उनको सही और गलत की पहचान भी है और वालिदैन उनके साथ हैं हर मुश्किल में। स्टूडेंट्स को भी बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। किसी को काम याद नहीं होता, किसी को एक दिन याद होता है तो अगले दिन भूल जाता है, और किसी की तवज्जो बार बार दूसरी बातों की तरफ होती है और वो इस तरह याद नहीं कर पाता। इन सब मसाइल का हल है। मसलन अगर याद नहीं होता तो आप बजाय इसके कि क्रैमिंग करें, समझ कर याद करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर एक दिन याद करते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं तो इसके लिए याद करने की एक स्ट्रेटजी है जिस पे अमल किया जा सकता है। अगर याद किया हुआ भूल जाता है तो जो टॉपिक याद करना है उसके पार्ट्स कर लें। मिसाल के तौर पे 2 सफ़े का टॉपिक है तो आप उसके 4 हिस्से कर लें। अब हर हिस्से के पॉइंट्स लिखें जो कि बताएंगे कि उस हिस्से में क्या क्या कुछ बताया गया है। अब आपने उस हिस्से को याद करना है और उसके बाद उसके पॉइंट्स को रिवाइज करना है। अगर आप हर हिस्से के पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपकी याददाश्त बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी आप याद करते हैं उसको ज़बानी दोहराएं और फिर उसके बाद लिख कर दोहराएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से याद होता है। कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी स्टूडेंट्स ने बताए कि जो उन्हें परेशान कर रहे थे।
जैसे इम्तिहान से पहले सब कुछ भूल जाना, पेट में अजीब सी बेचैनी होना और घबराहट होना। इसको हम एग्ज़ाम एंग्जाइटी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। इम्तिहान से पहले डीप ब्रीदिंग करें ताकि आपकी घबराहट में कमी आए। इसके साथ साथ नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करने की भी ज़रूरत है। मोस्टली ये होता है कि इम्तिहान से पहले हम अपने आप को बार बार ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। इसके बजाय आपने पॉजिटिव मैसेज देना है अपने ब्रेन को, यानी मैं कर सकता हूं, मैं कर लूँगा, मुझे सब कुछ आता है, मैंने अच्छी तैयारी की है। ये पॉजिटिव मैसेज भी आपको एग्ज़ाम एंग्जाइटी से बचाएगा। इसी तरह अगर बच्चों के दोस्त अच्छे ना हों तो भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक वालदा बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, हर वक्त पैसे मांगता है और स्कूल से आकर फ़ौरन बाहर चला जाता है, घंटों अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक़ बनाएं कि इस स्टेज तक आने से पहले ही आप उनको समझा लें। लेकिन अगर ऐसी नौबत आ गई है तो आपने सबसे पहले अपने बच्चे के साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर पर उसके दोस्तों को चेक करना है और अगर अच्छे दोस्त नहीं हैं तो कोशिश करें कि उनके साथ दोस्ती ख़त्म हो जाए। बच्चों की दिन की रूटीन को टाइट कर दें ताकि उनको फारिग टाइम ना मिले। जब बच्चे आपके साथ अच्छा महसूस करने लगें और आपके बात पे अमल करने लगें तो उनको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लेकर जाएं, यानी अपनी ज़िंदगी के गोल्स बनाएं और उनके लिए कोशिश करें। मसलन अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनको बताएं कि ये सब करने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा और वो स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए उनकी मदद करें। इसी तरह बच्चों के कुछ ख़ास मसाइल होते हैं जिन पर भी पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिनमें ऑटिज़म, ADHD और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स शामिल हैं। इन सब के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो कि आपने देखनी है वो ये है कि बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेस तो नहीं हो रहे, यानी बच्चा गर्दन संभालना, बैठना, चलना, बोलना ये सब सही टाइम पर कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, फिजिकल वीकनेस या मेंटल वीकनेस। तो इसके लिए आपने सबसे पहले पीडियाट्रिशियन को दिखाना है और फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को। इन प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जो कि तशखीस और शिद्दत दोनों के बारे में बताते हैं। इसी तरह पढ़ाई से रिलेटेड और मसाइल जैसे कि कंसंट्रेशन ना होना, भूल जाना, इन सब के लिए भी टेस्ट होते हैं जिनसे हम इनकी तशखीस करते हैं और शिद्दत का पता चलाते हैं और उसकी बेसिस पर सॉल्यूशन बताते हैं। इन सब मालूमात की मदद से आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं और उसे एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे विद अनदर टिप फॉर बेटर लाइफ।